रेप्स क्यों होते हैं? हाउ व्हाई डू रेप्स रियली हैपन? नोबडी टॉक्स अबाउट इट. एक अपब्रिंगिंग है, एक सोच है, वो जो सोच सदियों से चलती आ रही है कि महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार नॉर्मल थे। छोटी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन हुआ, किसी सब्जी वाले ने किया, किसी वेंडर ने किया, कि जिसमें नेता जा रहे हैं, दे सिट कॉप्स जा रहे हैं। अभी रिसेंटली वायरल हुआ है एक नेता का. उसमें पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं. What Pari Foundation stands for and what do you exactly do? People Against Rapes in India. So Pari is an acronym for that, but it's a bigger mission. And I started this work after 2012 when the Nirbhaya case happened. सोचिए उन्नाव का केस, कुलदीप सिंह सेंगर, उसको कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया और जब उसने रिपोर्ट किया उसके फादर को कस्टोडियल डेथ हुई, ठीक है, पुलिस स्टेशन में रख के मार दिया गया. जब उसने लड़ाई की तो उसकी पूरी एक गाड़ी उड़ा दी गई. अपने ग्रंथों की बात करें या किसी भी धर्म के, उसमें महिलाओं को बहुत नीचे रखा गया है. द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ, आपने देखा. Their girls to schools in villages. बट अगर चॉइस दी जाए कि बेटे को भेजना है, बेटी को बजट एक का है, तो वो बेटे को ही भेजेंगे. क्योंकि माइंडसेट वैसे काम कर रहे हैं कि इसको तो हमें शादी करा के भेज देना है दूसरे घर. और ये हमारा कुल का दीपक है, ये हमारी आगे हमारी पीढ़ियों को बढ़ाएगा. तो वो एक माइंडसेट अभी जा नहीं रहा है हमारे देश में. Hi, welcome to another episode of Creator Cast. Today I'm sitting with a guest जिन्होंने बहुत सारे legal outcomes को positively influence किया है, बहुत सारे communities को drive किया है in a positive manner and बहुत सारे जिंदगियां बदली हैं. I'm sitting with the founder of Pari Foundation, People Against Rapes in India, Miss Yogita Bhayana. Thank you so much for having me on your show. Welcome, ma'am. Welcome. First of all, let's start with what Pari Foundation stands for and what do you exactly do? So as the name says, People Against Rapes in India. So Pari is an acronym for that, but it's a bigger mission. Right. Why we named it Pari? Because when we used to do some kind of intervention and meet the survivors, if they were alive, when they have gone through their sexual violence, we used to call them with different names. We can't call them with their original name. Right. So I gave that name Pari because they were all like angels. So we decided this name because of that. However, it really matched with the spirit, which is like we all should stand against rapes. So People Against Rapes also is like, that's how the name came in. And I started this work after 2012 when the Nirbhaya case happened. But before that also I had been working with many such causes related to women empowerment, but this was that grave, even I had no idea till Nirbhaya case happened. The first question that comes to mind is, are women safe in India? Women of all ages, right from teen girls to women in their 60s, are they safe in India? I think this question should be asked to women of the India. You would know, not even a single woman will come out and say that they are feeling safe. If they say so, I think I'm surprised, because this is like literally, this is a survey we both can do. We can just step out from this building and we talk to women. Not even a single woman, and children rather, will say that they feel safe. So yes, definitely, I don't think so. I don't feel safe. So I really can resonate with the women of this country. I think none of them feel safe. मैम, जो बहुत स्ट्रेट सवाल है, मैं उस पे आऊँगा. आई डोंट थिंक इसको किसी और तरीके से पूछने का कोई तरीका है. रेप्स क्यों होते हैं? हाउ व्हाई डू रेप्स रियली हैपन? नोबडी टॉक्स अबाउट इट. नोबडी टेल्स एनीवन कि रेप्स इसलिए होते हैं. नोबडी डिफाइंस इट. इवन द मीडिया रन्स ऑफ इट, द पॉलिटिशियंस, दे. देखिए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज तक ढूंढ रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सवालों के जवाब मालूम नहीं है, बट ये एक ऐसी एक सिंपल सा सवाल नहीं है जिसका एक लाइन में कोई जवाब मिल जाएगा. बट जो बेसिकली जो मेरा वर्क है, या आप भी समझेंगे कि ये एक मानसिकता है, और सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का ही है कि एक पावर डायनामिक जिसे कह सकते हो, और जो हमारे परिप्रेक्ष्य में या पूरे वर्ल्ड में जो एक जेंडर को, जो महिला का जेंडर है, उसे जिस तरह से परसीव किया जाता है, जिस तरह से देखा जाता है हमारे समाज में, स्पेशली हमारे समाज में, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है. तो ये एक ऐसी वायलेंस है जो बिल्कुल जस्टिफाई कर दी जाती है कि ये नॉर्मल है,
क्योंकि आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक ने ये भी बोल दिया कि हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं, या फिर हो रहा है, तो मतलब इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप सोचिए कुछ साल पहले तक ये बहुत नॉर्मलाइज था, बट अभी कम से कम इसको हाईलाइट किया जा रहा है। तो इस ये क्यों होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि मैंने बोला कि एक अपब्रिंगिंग है, एक सोच है, वो जो सोच सदियों से चलती आ रही है कि महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार नॉर्मल थे, सेक्सुअल वायलेंस नॉर्मल थी। तो और सेकेंडली जिस तरह से हम महिलाओं को भी हमने अपब्रिंगिंग किया है कि चुप रहना है, सह लेना है, वो सारे परिप्रेक्ष्य निकल के यही आता है कि सोच की बात है, मानसिकता की बात है। और दूसरा, बच जाएंगे ये करने के बाद, उनको कोई सजा नहीं थी, ये वाली सारी चीजें मिलाकर ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस कह सकते हैं हो गई थी, और सेक्सुअल वायलेंस इतनी बढ़ गई। But do you think that a lot of influential people also have a very important role to play? Because मैं आए दिन इंटरव्यूज देखता हूँ जिसमें हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, जिसमें मेजर इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस हैं जिनका नाम ऑफ कोर्स हम यहाँ ले नहीं सकते, बट उनके इंटरव्यूज आते हैं एंड वी आस्क फॉर एन आंसर एंड दे जस्ट गो वेरी वेगली अबाउट इट एंड दे से कि यार लड़की को ध्यान रखना चाहिए था, कपड़े सही पहनने चाहिए थे, एग्जैक्टली। लड़कों का मन तो मचल ही जाएगा, ऐसा So कुछ। this is really, that's exactly, I'm trying to say that this is the understanding, or this is the mindset of the people who are in certain political positions. They are the leaders, supposed to be the leaders, and if they think like that, not only one politician from one particular party, from across party line, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरे पास तो एक पूरा रिसर्च है, मैंने एक किताब भी लिखी है, उस किताब में आप देखेंगे कम से कम 50-60 ऐसे नेता अलग अलग पार्टीज के हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए। सो इट मीन्स इट इज नॉट अबाउट द पार्टी और द थिंग, इट इज अ जनरल माइंडसेट। अब वही ही इंसान नेता बन जाता है, हम में से ही निकल के नेता बनते हैं ना। तो ये एक, अगर वही मैंने 2 कंपैरिजन दिए अपनी किताब में भी, मैं आपसे बताऊंगी कि नॉर्मल अगर हम सड़क पर भी पूछ रहे हैं किसी से, सपोज ऑटो ड्राइवर है या रिक्शा पुलर है या कोई भी है, इवन एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, राइट। अगर उससे बात की जाए तो वो भी ब्लेम लड़कियों को ही करते हैं 80 to 90%। तो यही लोग समाज का हिस्सा हैं और यही लोग पॉलिटिशियन भी हैं। तो ये नहीं कह सकते कि राजनेता ही ऐसा करते हैं, बिकॉज वो राजनेता भी इसी मानसिकता के हैं। और एक बात और आपको शॉकिंग बता दूं, सरप्राइज आपके लिए भी रहेगा, कि इट इज नॉट ओनली मेन हु टॉक लाइक दैट, इवन वुमेन पॉलिटिशियंस, वुमेन पर से आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंकिंग। विमेन टॉक, विमेन, सी इसका जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं है कि आपकी सोच कैसी है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दूंगी। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन हुआ, किसी सब्जी वाले ने किया, किसी वेंडर ने किया, एंड शी इज ओनली 6 year old। एंड व्हेन वी गॉट टू नो द केस, तो हमने बातचीत की, तो उसकी ग्रैंड मदर उसी को डांट रही थी कि तुमने ये ऐसे बात क्यों की, तुमने स्माइल क्यों किया। और ऐसे हमारे पास अनेकों एग्जाम्पल है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी एक जो ग्रैंड मदर है वो एक महिला है, और वो बच्ची को डांट रही है कि तुमने इस तरह के जेस्चर क्यों दिए। शी इज टेलिंग हर टू बी केयरफुल। हाँ, शी इज नॉट केयरफुल। वो केयरफुल रहने के लिए नहीं बोल रही, वो केयरफुल, काश वो बोलती, उनको उसकी चिंता होती। वो बोल रही तुमने स्माइल क्यों की, तुम उसके पास गए क्यों, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुमने इशारा किया। तो अब आप सोचिए वो और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मैं तुम्हें जैसे बहुत सारे हमारे विमेन पॉलिटिशियंस ने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, और अगर आप यहाँ से निकल कर इंटरव्यू करें कुछ महिलाओं का बाहर निकल कर, अगर आप उनसे पूछें बलात्कार क्यों होते हैं, उनके जवाब भी आप सुन लीजिएगा, हमने तो ये सब कर रखा है। तो इट इज नथिंग टू डू विद कि आप महिलाओं के प्रति मानसिकता पुरुषों की कैसी है, इवन महिलाओं की भी कैसी है। तो ये इट इज नथिंग टू डू विद जेंडर, एटलीस्ट द माइंडसेट। I'm trying to narrow down where this kind of mentality comes from. Is it the influence of Indian cinema or the kind of songs that we watch on screen? Is it the education system जहाँ पे लड़कों को गुड टच या बैड टच के बारे में सिखाया नहीं जाता, सिर्फ घर पे माएँ अपनी बेटियों को सिखाती हैं? कहाँ से पनप रहा है ये? Where does it all start is what I want to know. It doesn't start from one place, Right. And it doesn't end at one place. It is a multi layer, multi agency, you can say, stakeholder
वाली एक बात है कि खाली आप बॉलीवुड को भी ब्लेम नहीं कर सकते। दो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको कटघरे में खड़ा करती हूँ। क्योंकि हमारे देश में क्या है, देखिए एक तो रिलीजन है एंटरटेनमेंट के नाम पर, या फिर बॉलीवुड है। मैं एंटरटेनमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रही हूँ, क्योंकि आप सच में अगर रिलीजियस हो तो आप बहुत गहरे उसको पढ़ोगे। आप किसी ने पढ़ा नहीं है यहाँ पर कि मतलब रियल मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग अ वुमन क्या है। सब ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और अगर इसी तरह से हमारा दूसरा जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वो बॉलीवुड है। दोनों में ही आप देखिए, अगर हम अपने ग्रंथों की बात करें या किसी भी धर्म के, उसमें महिलाओं को बहुत नीचे रखा गया है। और महिलाओं का शोषण और महिलाओं को जो परसीव किया गया, इवन सीता माँ को बाहर कर दिया गया ऑन द डाउट ऑफ हैविंग एन अफेयर। और द्रौपदी का तो चीरहरण हुआ, आपने देखा। दो ये नहीं दिखता कि उसके ऊपर पूरी महाभारत हुई और उनकी डिग्निटी को बचाने के लिए, तो मीनिंग नहीं समझते हैं। तो बट स्टिल वहां से, और आज अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो एक भी फिल्म मतलब अभी बनने शुरू हो गई है अच्छी अच्छी, बट ऑब्जेक्टिफिकेशन के बिना कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी। मैंने तो बहुत सारी फिल्मों में निरीक्षण किया, 100 में से 90 फिल्में ऐसी हैं जिसमें महिलाओं का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है और महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोर दिखाया है, या सिर्फ एक शरीर दिखाया है, या फिर एक ऑब्जेक्ट दिखाया है। या फिर महिलाओं का शोषण हुआ है और उसको इन अ पॉजिटिव वे दिखाया गया किसी गाने में। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी कर देते हैं। इतने सारे गाने, आप कोई भी गाना उठा लो, मैं आपको उसमें ही निकाल के दे दूंगी कुछ ऐसे लिरिक्स जो बहुत डिमीनिंग है, जो हम इंजॉय करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है। आज तक मैं भी इंजॉय कर रही थी, तो मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब तक मैंने इसमें ज्यादा काम शुरू किया। तो मुझे लगा नहीं वो गलत था, ऐसे कैसे हम लोग उसको कंफर्टेबल कर सकते। कल रात को ही मैं एक गाना सुन रही थी, हालांकि हर गाने में मैं बता रही थी कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की है फुलझड़ी, इसको चखाए मजा। अब मजा चखाने का मतलब क्या है, इतना क्यों इतरती है, कॉलेज में नई नई आई एक लड़की है, इसको चखाए मजा, ये वाला गाना था। तो ये सारे गाने हम बहुत बहुत सुने हैं, और हमने इन्हीं पे हमने अपना, हम बड़े हुए हैं इनको सुन सुन के। राइट। तो तब तो हम एंजॉय करते थे, बट अभी अगर हमें लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ में बॉयज कर रहे हैं, कि अगर लड़की ने एटीट्यूड दिखा दिया तो वो कहते हैं इसको मजा चखाएंगे। दैट्स हाउ द होल ईगो, वो जो ट्रिप है कि लड़की ने मना कैसे कर दिया, इसने हमें रिजेक्ट कैसे कर दिया। तो ये सारी चीजें ना इम्बाइब्ड हो जाती है। तो बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा रोल है, समाज का बहुत बड़ा रोल है, ब्रिंगिंग का बहुत बड़ा रोल है, रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है, हर फैक्टर का बड़ा रोल है। आपके घर में आप किस तरह से महिलाओं का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसके हिसाब से द मैन विल act with other women outside. If the women of the house is not respected in the house, he will definitely not respect the women outside. So there are many many factors such as एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था। अगर मैं आपको इंटरेस्ट कर सकता हूँ इसमें, तो इट्स कॉल्ड द राइस थ्योरी। okay, तो उसमें लिखा हुआ था कि if you see people from the south or people from the west or probably the east now, Bengal and probably south में केरला हो गया, तमिलनाडु, चेन्नई, wherever rice is predominantly made as the food, prime food. okay, तो क्योंकि राइस का एक ऐसा फंक्शनैलिटी है कि वो जल्दी बन जाते हैं, 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो while women are serving rice to men, it's already on the table, so they are also with men on the table. but with the roti it's not the हाँ, same. so Interesting. रोटी रन स्टेट्स, जो ड्राई स्टेट्स है, लाइक हरियाणा, यूपी एंड ऑल ऑफ द स्टेट्स, पंजाब, जहाँ पे रोटी बनाते बनाते जो औरत है वो चूल्हे के पास ही रहती है, किचन में रहती है, एंड शी टू गिव गरम फुल्कास टू द मैन while he is having his lunch or dinner. So they can never sit with the men on the Table. dining table, never get to know what's happening in the economy perspective of the country, या देश में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं उन्हें समझ आता। whereas the rice run house, औरतें साथ में बैठ के खा रही हैं, उनको डिस्कशंस में हिस्सा बनाया जा रहा है, दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी, बाहर जा रही हैं, लिबरल होके काम कर रही हैं। डू यू बिलीव दैट घर से बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, वी डोंट गिव enough importance to women to sit along with men of the house and talk about everything, right from business to finance to schooling to education, everything? I think absolutely. I think this is very basic and very important factor which you have raised, and I think this is quite interesting which you have mentioned. Even I was not aware, but I think it is definitely a big factor. Everything starts at home.
ये तो मैं आपको बता दूं, घर से ही शुरुआत होती है। देखो, दो चीजें हैं, पहले तो बच्चा घर में रहता है, घर से ही सीखता है, फिर वो स्कूल जाता है। स्कूल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन। बाय डिफॉल्ट हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा करिकुलम नहीं है, करिकुलम भी बहुत बायस्ड है। करिकुलम में भी डिफाइंड सेट रूल्स हैं। अगर आप किताबें पढ़ें तो उसमें भी महिलाओं के कुछ गिवन रूल्स हैं, पुरुषों के अलग गिवन रूल्स हैं। न्यूट्रल नहीं है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, और स्कूल्स भी अलग अलग है। दिल्ली में मैक्सिमम स्कूल्स, मैं भी दिल्ली की पढ़ी हूँ, गर्ल्स अलग हैं, बॉयज अलग हैं। गवर्नमेंट अगर कोई है तो ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन, तो अलग अलग स्कूल्स हैं। आपने दूसरी अलग दुनिया बना दी है, दो वी आर सपोज टू बी को एग्जिस्टिंग, बट आपने दो अलग अलग दुनिया बना दी। ये लड़कियों की दुनिया है, लड़कों की दुनिया है, यू नो, मेंस वर्ल्ड, वुमेन्स वर्ल्ड। को एग्जिस्टेंस वाला जो एक फैक्टर वो खत्म ही कर दिया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इसके रिपरकशंस ही हम भुगत रहे हैं। कोई बोले तो सबसे पहले अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूंगी तो डेफिनेटली आई वुड आस्क कि को एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी। राइट। उससे बहुत सारी चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी। राइट टू एजुकेशन तो है, बट बॉयज मेनली स्कूल नहीं जा रहे हैं। लड़कियां किसी और रीजन से ड्रॉप आउट होती हैं, जो फैक्टर्स हैं सोशल, उन्हें इनकरेज नहीं किया जाता। बॉयज ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो अगर वो स्कूल जाएं, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा क्राइम करते हैं, स्पेशली सेक्सुअल क्राइम्स। अगर आप एक स्टडी आप करें तो आपको पता चलेगा कि जितने ड्रॉप आउट्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में। कमिंग बैक टू आपने जो अभी बात करी राइस फैक्टर की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसीलिए डाउन साउथ में ये क्राइम्स कम है, नॉर्थ ईस्ट में ना के बराबर है, क्योंकि सब राइस ईटर्स हैं। ये एक अलग फैक्टर हो गया, ये मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। बट सिटिंग with them equally in the house, I think it is also very important, क्योंकि वो टेबल पे खाना एक सोशल बॉन्डिंग, एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए भी जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली आप कुछ सीखेंगे, बट साथ में खाना खाना सबका हक है, और एक साथ खाना सबका हक है। बट क्योंकि यहाँ सबको गरम गरम फुलके चाहिए, इसीलिए यहाँ पर इतना वो है कि वो बेचारी गर्मी में खाना बनाती रहती है, गरम गरम रोटी ला के देती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत डिमीनिंग सी चीज है, यू नो, एक वुमेन के ऊपर। दो आई एम नॉट सेइंग चेंज योर हैबिट, स्टार्ट ईटिंग राइस, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट men can also do that. They can exchange, they can swap, they can have, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, they can have a hot case। तो जब आप बैठते हैं वो एक फैमिली बॉन्डिंग भी होता है, then that's the respect even the boy of the house will learn। My mother was given that respect and he will treat his wife accordingly। तो ये सारे फैक्टर्स तो पास ऑन होते हैं, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। और हाई टाइम वी नीड टू हैव दैट इंक्लूसिविटी, एंड मेन शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टुगेदर। यू नो, आज की डेट में वो समय है कि दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को साथ में घर का काम भी करना चाहिए। Like in my house, my father has been cooking since ever. हमारे कल्चर में हमेशा से ठाकुर ही रहे हैं जो मेल कुक्स होते हैं। सो वीव नेवर फेस दिस प्रॉब्लम। दिस इज अ वेरी नॉर्थ प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे मूव होने के बाद देखा है, दैट अच्छा, women आर ट्रीटेड डिफरेंटली। लाइक कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हम घर पे ही लगा देते हैं कि शाम के 7 बजे के बाद मत निकलना। भैया जा सकते हैं लेकिन आप मत निकलना, आपके लिए डेंजरस है। आप ड्राइव करना अभी मत सीखो, 20-25 साल हो जाए फिर सीखो। भैया 18 की उम्र से ही गाड़ी चला रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस हम उनमें पहले ही लगा देते हैं ताकि दे ऑल्सो मेंटली स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम लिविंग इन एन अनसपोर्टिव अनसेफ एनवायरनमेंट, और मुझे 24 घंटे संभल के चलना पड़ेगा। वेराइज कि मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे चाचा, जितने भी मेल लोग हैं वो फ्रीली चल सकते हैं। That is, I think, one of those things that needs to change, definitely. एब्सोल्युटली। सी आपको मैं मानती हूँ, अभी जो एक है कंसर्न, वो एक जेन्युइन कंसर्न है कि अगर नॉर्थ में, स्पेशली दिल्ली में, अगर यहाँ से अगर मुझे निकलना है, एक कंसर्न के अगर एंगल से आप मुझे बोलेंगे कि नहीं आप 6-7 बजे के बाद थोड़ा देख के निकलिए, या यू नो बी केयरफुल, बिकॉज आई नो अभी यहाँ पर क्या सेफ्टी स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो अलग है। बट एक नॉर्म ही बना दो कि आप लड़की हो, आप 6 बजे के बाद नहीं निकलोगी, ये मतलब ये फिर एक ये बहुत बड़ा एक तरह से उसकी ग्रोथ को रोकने वाला, और एक स्टीरियोटाइप, और ये जो मानसिकता है अगेन कि वुमेन कांट स्टेप आउट, वुमेन कांट ड्राइव, वुमेन कांट डू दिस, वो तो अब काफी हम हद तक क्रॉस कर चुके हैं। पर अभी भी ये अर्बन सिनेरियो में फिर भी काफी क्रॉस कर चुके हैं, पर विलेज लेवल पे अभी भी हमें बहुत लड़ाई करनी है। और हमारी 80% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है। तो हम जब बात करते हैं, हम ज्यादातर अर्बन सेटअप की बात करते हैं, बट हम भूल जाते हैं हमारे देश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन
विलेजेस में हैं, और उन महिलाओं का क्या, उनकी स्थिति बदलने में भी 100 साल और लग जाएंगे। I think you've adopted villages. I think you've been actively working in a lot of villages to uplift the lifestyle of women, girls of all ages. Please walk us through those scenarios. जब आप जाती हैं तो आप क्या फेस करती हैं? What scenarios do you come across? देखिए, मैं तो क्या ही बताऊँ, दिल्ली के आसपास सटे हुए गाँव में मैंने काम किया है, और डेफिनेटली मैं बिहार, झारखंड इस तरह के गाँव में भी गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर दूर-दराज़ के गाँव हैं, यूपी के, बिहार के या मध्य प्रदेश में भी हम लोग ने काम किया, तो मुझे लगता था कि ऐसा रहेगा कि बहुत चेंज होगा डायनामिक्स, बट यहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे जाएँगे तो वही प्रॉब्लम है, वही सारे इश्यूज़ हैं, और जेंडर इश्यूज़ तो है ही हैं। जेंडर के साथ-साथ जो कास्ट कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और एक है कि महिलाओं को घर से नहीं निकलने देना, वो हमने काफ़ी हद तक चेंज किया, काफ़ी बात की। पहले दिन हमारी मीटिंग में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ गाँव है, 10 किलोमीटर भी नहीं है, महिलाएँ इतने बड़े-बड़े घूंघट लगा के आई हमारी मीटिंग में। तो हमने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे मतलब रहते हैं, पूरे गाँव में आप ऐसे ही घूमते हैं? तो बोले कि हमारा कल्चर है। कई हद तक हम काफ़ी वर्ष काम करने के बाद वो घूंघट उठा है, यू नो। तो वो हमें लगा एक सक्सेस रही कि दे स्टार्टेड रोमिंग अराउंड विदाउट द वेल। वो उन्होंने जब, ये बहुत मेजर चेंजेस था जब उन्होंने देखा हम आ रहे हैं बाहर से काम करने, और दे फेल्ट सम कनेक्शन एंड दे आल्सो स्टार्टेड बिहेविंग सर्टेन वे। ये अपने आप में एक बड़ा चेंज देखा कि उन्हें लगा कि हाँ, दिस इज माय राइट टू बी रोमिंग अराउंड। गर्मी है, आप इतना लंबा लंबा घूंघट लेके घूम रहे हैं। बट कास्ट डायनामिक्स भी मैंने देखे, जो कि हाउएवर इट्स नॉट द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट इट इज वेरी मच रिलेटेड कि इनके यहाँ नहीं खाना, इनके यहाँ नहीं जाना। तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत दुखी करती हैं इस देश में, और दिस इज वन ऑफ देम। हमारे यहाँ बहुत सारे तरह के बायस्ड हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं, जेंडर तो है ही है, बहुत तरह की और डायनामिक्स उसमें मिक्स हो जाते हैं, तो काम करना और मुश्किल हो जाता है। और मुझे लगता है ये चीज़ें थैंक्स टू सोशल मीडिया और मोटिवेशनल स्पीकर्स और जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से धीरे धीरे अभी चेंज हो रही है, जो कि बहुत टाइम लगना था, हो सकता है वो थोड़े कम टाइम में चेंज हो जाए, और बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें चेंज होना। Are people sending their girls to schools in villages? ये तो है ट्रेंड। देखिए, विलेजेस में ये ट्रेंड तो है कि भेजते हैं, बट अगर प्रेफरेंस देनी हो कि अगर हम, उनके पास लिमिटेड बजट हो, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्राइवेट है, तो वो बेटे को फिर भी प्रेफरेंस देते हैं, अभी भी वो है। बट बेटियों को भेजना शुरू कर दिया है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। बट अगर चॉइस दी जाए कि बेटे को भेजना है, बेटी को बजट एक का है, तो वो बेटे को ही भेजेंगे। ये चीज बदलनी है, क्योंकि अभी भी प्रेफरेंस बेटे को ही है। क्योंकि माइंडसेट वैसे काम कर रहे हैं कि इसको तो हमें शादी करा के भेज देना है दूसरे एग्जैक्टली। घर। और ये हमारा कुल का दीपक है, ये हमारी आगे हमारी पीढ़ियों को बढ़ाएगा, तो वो एक माइंडसेट अभी जा नहीं रहा है हमारे देश में, और वो बहुत टाइम लगेगा उसको जाने में, और पता नहीं वो कैसे होगा, क्योंकि मैं जैसा बोला ना, बहुत सारे लोग उसको बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं। आप ये कुल का दीपक, ये सारे डायलॉग्स आप फिल्म्स में देखेंगे, और हमारी आरतियों में भी आप देखेंगे कि यू नो पुत्र देवो, वो पुत्र आशीर्वाद में देते भी वही टाइम देते हैं। पुत्र देवो भव। हाँ, और उसमें भी जब हमारे प्रार्थनाओं में भी हम पुत्र मांगते हैं, और उसको नॉर्मलाइज किया गया है, दूतो नहाओ पूतो पलो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम इम्बाइब्ड करते हुए आए हैं, उनको निकालें कैसे, बहुत डिफिकल्ट है कि इट इज कि बेटे ही बेटे हो जाए पूरी दुनिया में पूरे, मतलब तो महिलाएं होंगी नहीं तो कैसे चलेगा। तो ये कि प्रेफरेंस ऑफ वन जेंडर ओवर अनदर इज वेरी डेंजरस ट्रेंड विच हैज डेफिनेटली चेंज्ड लॉट, बट और चेंज होने की जरूरत है। आप विलेजेस में काफ़ी गई हैं। मुझे एक बहुत अच्छे ट्रेंड के बारे में पता है जो वहाँ पे अभी भी बहुत वैलिड है। सो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे एरियाज़ में बियॉन्ड यूपी देयर इज़ दिस कल्चर ऑफ वॉचिंग women dance at nights. दैट्स वेरी टेरिबल। Yeah, बहुत बुरा and है। all men are allowed to attend those functions, जी। and no woman can ever come to that place to enjoy the dance. However, they are married men जो डांस देख रहे हैं। देखिए, डांस भी आप बोल रहे हो बड़ा रिस्पेक्टफुली, हाँ, वो उसको इतना कुछ चीप और टर्म डांस यूज है। करते हैं, वो मैं यूज हाँ, नहीं कर सकता यहाँ पे। एग्जैक्टली, वो इतना चीप तरह से एक
ऑब्जेक्टिफाइंग द वुमेन, और वो मैंने देखे वो वीडियोस, और उस पे हमारे कुछ ट्रैफिक, क्योंकि कुछ लड़कियों को जबरदस्ती इस काम के लिए धकेला जा रहा था, तो हमने उस पे कुछ काम भी किया था, तो रेस्क्यू करने का, कि उनको मर्जी से नहीं, उनको ग्रूम किया जाता है इस तरह के डांस करने में, और वो बहुत बुरा, और उसको वो ट्रेडिशन मानते हैं. Yeah, that's a They- tradition. they find it very They find it very normal. It's a very normal tradition, and all the married men sit around, sexualize those women, हाँ, whereas not even single little girls are allowed to go and out and वो watch a movie. छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनसे वो डांस करा हाँ, रहे थे. ये भी नहीं right. कि वो कोई बहुत, मतलब वो कई बार तो माइनर होती है जिन्हें हमने रेस्क्यू, हमारी कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन्होंने रेस्क्यू किया. समटाइम दीज डांसर्स आर माइनर्स देमसेल्फ. Okay. तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और ये खुले में हो रहा है. और कुछ लोग बोलेंगे कि वल्गैरिटी, आई एम नॉट वरीड अबाउट कि वो वल्गैरिटी को वो किस तरह से वो परसीव हो रही है, वो एक ट्रेंड गलत है. Right. ठीक है, विद इन क्लोज डोर्स करो, बट अगर फोर्सफुली करवा रहे हो या जबरदस्ती हो रहा है, और अभी तो आपने देखा कि नेता लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उसको, कितने सारे वीडियोस वायरल हुए हैं कि जिसमें नेता जा रहे हैं, दे सिट, कॉप्स Yeah. जा रहे हैं, अभी recently हाँ. viral हुआ है एक नेता हाँ. का. उसमें पुलिस ऑफिसर्स जाते हैं. तो ये बहुत मतलब कि दैट वुमेन इज देयर, वो एंटरटेनमेंट है, वो आपको एंटरटेन करेगी. ये बहुत खतरनाक है. आप समझ रहे हैं, ये जो सिनेरियो है, एंड डेफिनेटली दीज गर्ल्स आर प्रोन टू सेक्सुअल वायलेंस. अगर वो मना कर दें, क्योंकि बहुत बहुत बार उनको इंसिस्ट किया जाता है टू गो विद द मैन, और वो मना करती हैं, तो कई बार शूट आउट्स हुए हैं, कितनी बार गोलियां चली हैं. आप देखें बिहार वगैरह में, हरियाणा में भी बहुत सारी डांसर्स हैं, हरियाणा में भी ये ट्रेंड हो चुका है. हाँ, हरियाणा की तो एक डांसर बहुत फेमस भी है. एक को तो मार भी दिया उन्होंने Recently. बहुत टाइम हुआ, 2-4 साल हो गए. अच्छा. तो गोलियां वलियां चल Different जाती हैं person. अगर दे रिफ्यूज टू गो. तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, और दिस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग दैट वन फैक्टर ऑफ ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, कि But- भाई महिलाओं का काम ही है एंटरटेन करना. Right. Let me ask you something very frankly. Do you think women will be safer, minor girls from villages will be safer if prostitution becomes legal in India? देखिए, ये ना बहुत डिबेटेबल है. प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है इस कंट्री में, तो भी लीगल है. वी हाँ, ऑल वो तो नो है. वेयर द प्लेस इज एग्जिस्टिंग. बट मैं आपसे ये पूछ रहा था बेसिकली कि क्या लॉज फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड विमेन will ease out? Will it be better for women if prostitution becomes legal in India? मुझे नहीं लगता ज्यादा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एज इट इज प्रोस्टिट्यूशन लीगल पेपर पे नहीं है, बट वैसे तो लीगल ही है, क्योंकि हमें भी पता है वो कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है. हर सिटी का, हर जगह का हमें पता है. तो एक तरह से लीगल है, क्योंकि उसको यू हैव क्लोज द आइज फॉर इट. सबको पता है, इट्स इजीली एक्सेसिबल, है ना. Right. तो वो तो है ही. समवेयर मुझे लगता है कि इफ द गर्ल और द वुमेन इज नॉट फोर्स्ड इनटू इट, and if they have dignified way of doing it in terms of getting the license and everything, I think it will ease out a little, you know, the atrocities. But at the same time, जो violence करते हैं ना, क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो उनको इन सब चीजों से लेना देना नहीं है. they feel some kind of a thrill to, you know, kind of force themselves on एडवेंचर है women. उनके लिए रेप करना या हाँ, मतलब molest करना किसी एडवेंचर को. है, या पावर डायनामिक्स है, या लस्ट है, या कंपल्जन है. वी आर स्टिल फिगरिंग आउट. Right. वो तो हम अभी तक सोच ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं है क्या, बट वो रिड्यूस होंगे किस हद तक. डेफिनेटली इट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, बट मुझे लगता है कि देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ वुमेन बीइंग पुश्ड इनटू सेक्स ट्रेड मोर. अभी भी ट्रैफिकिंग बहुत है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, and they are pushed into the thing. Maybe it might help. See, I don't know. I'm two just sides of a assuming. coin. हाँ. So it might increase trafficking. Okay. अगर उसको Regularize नहीं किया गया. रेगुलराइज नहीं किया गया तो. और देखा ना जाए कि भाई फोर्सफुली भेज रहे हैं या वो बाय चॉइस जा रही है, यू नो. एंड मुझे डाउट है कि कोई बाय चॉइस करना डू इट, करना तो वो बढ़ जाएगा. तो कहीं ना कहीं यहाँ सफर करेंगे, यहाँ बचेंगे तो वहाँ सफर करेंगे. So I really don't know, but we are still trying to figure out, will that help or will that deteriorate the situation? आपने कई विक्टिम्स के लिए एडवोकेट किया है, कई लीगल आउटकम्स को आपने पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है.
बहुत जैसे कि निर्भया केस था, इट वाज अ बिग विसल ब्लोअर. I just want to understand what is the psyche of people who do violence with the bodies of the victims. I mean, uh, doing rape is already very grotesque, it is very gruesome. But why do they torture the victim with insertions, and why do they torture with them with stuff that is not like जैसे सरिये से मारना या कोई इंसर्ट कर देना कुछ, ये where does this come from? सी ये जो मानसिकता है ना, ये ब्रूटलाइजिंग, आई थिंक इट इज समवेयर बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे डू Absolutely. दैट. क्योंकि एक तरह का उनमें एक अंदर एक ऐसा दरिंदा है जो मतलब सोचता है कि ये नॉर्मल है. और जब से निर्भया के बाद ये बात बाहर आई है, तब से तो और ज्यादा हमने ये ट्रेंड ही देख लिया है कि काइंड ऑफ बहुत ही नॉर्मल हो चुका है. आप सोचे छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बर्बरता होती है वो इससे भी ज्यादा ब्रूटल हो चुका है. ये मानसिकता तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रही क्या है और क्यों है. समवेयर वी नीड टू रियली गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट कि वो क्यों करते हैं ऐसा, कि इवन द चाइल्ड इज डेड और द वुमेन बॉडी इज लाइंग देयर, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू द ब्रूटैलिटी. तो ये एक गहन रिसर्च करनी पड़ेगी. और हम लोग ट्राई भी करते हैं कि हम बात करें क्रिमिनल्स से कि पूछे आपने ये क्यों किया, बट हमारा लॉ अलाउ नहीं करता यहाँ पर. एंड आई वुड से कि बहुत रिसर्च की जरूरत है. क्रिमिनल माइंडसेट को स्टडी करना बहुत जरूरी है. माय वर्क इज मोर विद विक्टिम्स एंड आई रियली वांट सम ऑर्गेनाइजेशन, और मे बी आई वुड लाइक टू डू some kind of a study, and which I've been telling government to give us access to this so that we understand and we work on it. But हमें तक अभी तक access नहीं दिया गया है. बट क्यों हम इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते स्कूल्स में? जिस तरीके से, जैसे मैं भी एट अ सर्टेन पॉइंट जब स्कूल में था, वी वेर गिवन सेक्स एजुकेशन, बट बहुत ही ज्यादा ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं, और टीचर्स आर ऑल्सो वेरी रिलक्टेंट टू से द राइट वर्ड्स. दे विल यूज इट in a very bio term, call it a reproductive organ and not call it a vagina or a penis. They're very reluctant to teach you properly. देखिए ये बहुत स्टुपिडिटी है मुझे लगता है, क्योंकि ये समस्या से भागने वाली बात है. हाँ, ठीक है, तो सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली होना चाहिए. इस चीज को हम बार बार बोलते हैं, और ऐसे नहीं कि जैसे पेजेस को फ्लिप थ्रू कर दिया, वो बहुत right. कॉमन है. और बहुत अच्छे से होना चाहिए. और देयर आर बियॉन्ड दैट सेक्स एजुकेशन की, बियॉन्ड जेंडर सेंसिटाइजेशन, Absolutely. कि भाई हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. शी इज नॉट समवेयर फ्रॉम सम अदर प्लैनेट and we coexist, and she is not a body, she is also a human being. These are the curriculum we have been doing as individual organization, we have been doing in schools. Good touch, bad touch is also good for a certain age group, but we need to go beyond that. We need to go how we grow up together, we build that scenario where we coexist. So ये बहुत जरूरी है, और sex education is a very major part of it, and it should be done properly, not like how we discussed. और ये बार बार सरकारों को बताते हैं, और उनको पता भी है ये बात, but eventually they are also of certain mindset sitting there, so it is very difficult to change that. क्योंकि हम लोगों को भी कभी भी गुड टच बैड टच के बारे में बताया नहीं गया. मतलब हो सकता है मेरी बहन को मेरी माँ ने बताया हो, बट एज boys we were never taught about good touch bad touch. I think it's more important to teach the boys. Than the girls. Boys and girls both are vulnerable to this. ठीक है, और अगर ये बच्चों की बात की जाए तो सेक्सुअल वायलेंस बराबर, ऑलमोस्ट बराबर है दोनों में. इफ आई विल से कि ओनली गर्ल्स आर प्रॉम्प्ट गोइंग फॉर इट, आई थिंक इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. हमारे पास केसेस आते हैं, बॉयज आर इक्वली वनरेबल. छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो दोनों को जरूरी है बताना. एंड वी नीड टू काइंड ऑफ टेक इट एज अ जेंडर न्यूट्रल थिंग, कि ये कोई लड़कियों को बताने की बात नहीं है. ये हमारे सारे बच्चे अनसेफ हैं. एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन, ऑल आर अनसेफ. कमिंग डाउन टू जिस तरीके से हम सेंसेशनल बना देते हैं किसी विक्टिम की लाइफ को राइट आफ्टर अ रिपोर्ट कम्स आउट. कोई विक्टिम का रेप होता है, it comes out in the mainstream media, some guy finds it out, gives a tip to a major mainstream media channel, and they lift it up to boost their TRPs. What has that done, or how has it impacted a victim's life? मुझे नहीं लगता है वो कहीं से विक्टिम लाइफ को इम्पैक्ट करता है. पॉजिटिवली तो नहीं करता. पॉजिटिवली तो नहीं करता है. मतलब कहीं ना कहीं केस को हाईलाइट कर देता है, तो उसको
क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी भी अंडर मीडिया प्रेशर काम करता है, Right. और क्योंकि हमारे पास निर्भया जैसे ही केस रोज आते हैं, हर एक केस को मतलब नहीं मिल पाता है और लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं जा पाता, वो सालों साल लटक जाते हैं, और निर्भया भी 9 साल लग गए, आप सोचिए। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया का कोई फायदा नहीं है, मीडिया माइट बी डूइंग इट फॉर द टीआरपी, और वो बहुत रैंडम है, बहुत सिलेक्टिव है, वो अपने हिसाब से चीजों को उठाते हैं, बट जो वो उठाते हैं कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्ड करता है फॉर जुडिशरी, बट वो विक्टिम को कहीं कहीं भी कोई हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हाईलाइटेड केसेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और नॉट सो हाईलाइटेड केसेस भी हैं, और इक्वल ब्रुटैलिटी है उनमें, आप सोच रहे हैं। तो आई एम गिविंग यू कंपैरिजन, तो हाईलाइट होके वो जस्टिस थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाता है, जस्टिस तो नहीं मैं बोलूँगी, जस्टिस तो मिलता ही नहीं है, मतलब प्रोसेस एक्सपेडाइट हो जाता है, बट एट द सेम टाइम हाउ इट हेल्प्स द विक्टिम, I don't think so. There is any bright light about it, because वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल है। आप सोचिए उन्नाव का केस, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसने मतलब जिसके ऊपर फिल्म भी बन गई है, मतलब उस लड़की को माइनर थी जब वो, उसको कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, और जब उसने रिपोर्ट किया उसके फादर को कस्टोडियल डेथ हुई, ठीक है, पुलिस स्टेशन में रख के मार दिया गया। जब उसने लड़ाई की तो उसकी पूरी एक गाड़ी उड़ा दी गई या यूपी हाईवे पे, उसमें उसके लॉयर की डेथ हुई, उसके आंट की अंकल की आंटी की डेथ हुई, उसकी बुआ की, और एक मासी की। दैट गर्ल सर्वाइव्ड, उसको इंजरीज हुई, आई हैड मेट हर दैट टाइम। कितना हाईलाइटेड केस है, सोचिए एक लड़की जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसकी गाड़ी उड़ा दी आपने, उसके फादर को मरवा दिया आपने, आज चाचा भी उसका जेल में है, वो केस तो उसका हाईलाइट हो गया ना, और एक्सपेडाइट भी हो गया, हर जज को पता है ये वाला केस है, तो दे आर गिविंग थोड़ा जल्दी जल्दी उसको डेट्स मिल रही हैं, दैट्स इट। आज भी वो रेंट के लिए स्ट्रगल कर रही है, चल नहीं पाती है ठीक से, उसके पास खाने के पैसे नहीं, हाउ डिड इट हेल्प हर? ठीक है, तो ये सारी कहानी है कि उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो कुछ भी नहीं हुआ, उसकी लाइफ तो हेल ही रही। तो न्याय अगर आप जल्दी दे देते तो शायद हो सकता है कि कंक्लूजन हो, तो शी कैन ऑल्सो लिव हर लाइफ। पहली बात तो कोई लॉयर उसका केस लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है पहले वाले लॉयर को आपने मरवा दिया। तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके होते हैं, और ये तो हाईलाइटेड केस की बता रही हूँ, जो नॉट सो हाईलाइटेड है उनको तो न्याय मिल ही नहीं पाता कभी भी। जुडिशियल सिस्टम अलग नहीं हो सकता रेप विक्टिम्स के लिए? होना चाहिए, बिकॉज हमने इस बात की डिमांड की थी निर्भया केस के बाद कि स्पेशल कोर्ट्स हों इसके लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाई गई थी, पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अभी तक लागू नहीं हुई है। इट्स बीन 12 years, मोर देन दैट, आई थिंक सो। 13 years के ऊपर हो गए, आज तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के नाम पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं आई है। और जुडिशरी भी सेम है, जो चेक बाउंस केस देख रही है, चोरी डकैती का भी वही देख रहे हैं और रेप का भी वही देख रहे हैं। तो और पुलिस भी वही है, जो वीआईपी ड्यूटी में भी लगा है, वो किसी गाय भैंस को भी ढूंढ के ला रहा है, वो फायर भी वही देख रहा है, और उसके बाद वो रेप केस भी वही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो एक्सपर्टी नहीं है ना कहीं किसी की, तो जिनकी एक्सपर्टी नहीं है तो वो रिपोर्ट क्या देगा? जज को अगर आप एक कोई फाइल देंगे ना, वो उसी के बेस पे न्याय देगा, वो नहीं देखेगा कौन क्या है, वो देखेगा पेपर क्या है एंड विटनेस क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, वो ऑन रिकॉर्ड। और वो फाइल कौन रखता है उसकी टेबल पे? इन्वेस्टिगेशन डन बाय पुलिस, करेक्ट? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, राइट? और वो किस रैंक का ऑफिसर है, उसकी क्या तैयारी है, उसको क्या पता है? मैं अगर उस विषय पे जाऊंगी तो हम 4-4, 6-6 घंटे बात कर सकते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर देम। हाँ, इट्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, डाल दिया, जो मन में आया डाल दिया, जो मन में आया लिख दिया, नॉट बाय द एविडेंस, नॉट बाय द प्रॉपर प्रोसीजर्स। और इसीलिए कन्विक्शन रेट 27 कुछ % है, विच इज लाइक 100 में से सिर्फ 27 केसेस में जस्टिस मिल पाता है, और वो 100 वो केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। This calls for a very important question. How do rape accused criminals get bail? कैसे उनको इतनी जल्दी बेल मिल जाती है और निकल जाते हैं? इसीलिए मिल जाती है ना बेल, जब क्योंकि जो बेल अपोज करना है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स नहीं है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, सरकारी वकील, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो फिर भी पैसा मिलना है, वहाँ
हियरिंग का, जो प्राइवेट हायर कर सकते हैं, हमारी जैसी संस्थाएं मदद भी कर देती हैं। कितने लोग प्राइवेट लॉयर हायर करेंगे, क्योंकि ये सारा जो हो रहा है वो एक गरीब तबके में ज्यादा हो रहा है, अंडर प्रिविलेज लोग ज्यादा इसके शिकार होते हैं। कितने लोग लॉयर हायर कर सकते हैं, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? जुडिशियल प्रोसेस इतना महंगा है कि टू गिव वन लॉयर पर हियरिंग इज सो डिफिकल्ट। तो आपका जो अगर स्टेट लड़ रहा है केस, तो यू नो हाउ दे विल नॉट बी बॉदर्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड। पुलिस वाले को क्या पड़ी आपको न्याय दिलाने की? तो उसने जो लिख दिया वही सत्य है, और जज को भी कौन सा पड़ी हुई है, वो उसने जो पढ़ा उसमें दे दिया, उसने कोई दिमाग ही नहीं लगाया। क्या Nobody is bothered. आपने कभी कोई ऐसा केस फेस किया है जहाँ पे लीगल आउटकम जो है वो चेंज कर दिया गया हो इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड? बहुत सारे केसेस है ना, बहुत सारे केसेस है, एक नहीं है मेरे पास, तो अनेकों उदाहरण है हमारे। तो बहुत सारे केसेस जुडिशियल प्रोसेस में है और इन फेवर ऑफ एक्यूज हो जाता है डेफिनेटली, बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस है। अब एविडेंस कहाँ से लाए? मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूँ ना, मैं पुलिस हूँ। अब मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर भी करूँ और वो एडमिसिबल भी नहीं होगा। अगर मैं कोई प्राइवेट एजेंसी लगाकर मैं खुद ही कर दूं ये सारा काम, बट दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। पुलिस जो देती है वही परम सत्य माना जाता है। पुलिस जो एविडेंस कलेक्शन करती है उसी के बेस पे न्याय मिलता है। एंड वी नो आवर पुलिस सिस्टम, हाउ करप्ट इट इज एंड हाउ इनएफिशिएंट इट इज। सो आई अगेन वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट। तो वो जो ला के दे देते हैं टेबल पे, वो उसी के बेस पे न्याय मिलना है। और वो क्या टेबल पे रखते हैं वो उसकी इच्छा, उसकी पर्सनल चॉइस है। इफ ही वांट्स टू गिव इट टू द केस, दे विल गेट द जस्टिस। एक पुलिस वाला अगर ठान ले बच्ची को न्याय दिलाना है, वो दिला सकता है, बट वो ठानते ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मोटिवेशन। एंड आई पर्सनली डोंट ब्लेम देम, बिकॉज डेफिनेटली दे आर करप्ट एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट देयर इज नो मोटिवेशन फॉर देम टू डू दिस। उनको क्या है, उनके 16-17 घंटे की काम है, नॉन स्टॉप काम करते हैं, 10 तरह के काम करते हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो एक अलग चीज है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है और उनको रिसोर्सेज देने की जरूरत है। आज भी उनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, गाड़ियां नहीं है ढंग से, कभी इस कोर्ट में जाना है, कभी वहां जाना है, कभी इस क्रिमिनल को पकड़ने वहां जाना है। दे डोंट हैव एवरीथिंग एंड मैन पावर कम है उनके पास, जितनी ब्रांडविड्थ होनी चाहिए उससे बहुत कम है उनके पास। So I think we need different teams in the legal Yes. system. We need different teams in terms of police, Yes. in terms of hospitals. Yes. Everywhere there has to be a different team that is Professionals. professionals specifically working for rape victims. अगर ऐसा हो जाए तो ये तो एक सपने की तरह है। मुझे लगता नहीं ये इतना पॉसिबल है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्पेशल टास्क फोर्स है फॉर इकोनॉमिक ऑफेंस, Right. ईडी है, सीबीआई है, हर केस में सीबीआई नहीं लग सकती, क्योंकि बच्चियां जो है ना हमारी, वो किसी की प्रायोरिटी नहीं है। वुमेन नाम के लिए वोट बैंक है, बट अगर ये प्रायोरिटाइज हो जाए तो फिर समस्या ही किस बात की है? फिर तो हम और यहाँ बैठ के चर्चा भी करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये तो एक ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन जो हम बात करें, काश ये ऐसा हो जाए कि स्पेशल टास्क फोर्स हो, स्पेशल जजेस हो, बट I don't think so, because terrorism is their priority. Of course, terrorism is something which is very gruesome. ठीक है, ओवरनाइट आप फांसी दे देते हो, बट एक बात बताओ, हमारी ज्यादा बच्चियां हमारे देश में मोर देन टेररिज्म मारे जाती हैं, रेप और मर्डर होते हैं। Right. टेररिज्म से भी ज्यादा ब्रूटल ये है, बट जिस दिन हम उसको उस तरह से देखने लगेंगे तभी हम न्याय दे पाएंगे। बट अभी भी हमारी प्रायोरिटी है दूसरे देश से आके हमें कोई ना मार जाए, बट हमारे देश में हमारी बच्चियां हमारे देश के आदमियों की तरह बलात्कार कर दिए जाएं रोज, मोर देन टेररिज्म नंबर्स आर मच मोर हायर, बट वो हमें बर्दाश्त है। How do you deal with it? How do you keep sanity? It is very difficult, because when I see a dead body of a child or a woman, or when I see a girl who has been raped and brutalized in the hospital, of course I get sleepless nights. It's very difficult to maintain that sanity, but the work has to go on, so I have to get back to myself and then start working. बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। पिछले महीने एक बच्ची को देख के आई हॉस्पिटल, तो मेरे को 2-4 दिन तो मैं बिल्कुल ही ट्रॉमा में चली गई। शी वॉज ओनली 8-year-old डेफ एंड म्यूट गर्ल, बात ना बोल पा रही है, उसके साथ क्या हुआ, एंड शी वॉज बीइंग ऑपरेटेड आफ्टर रेप। उसकी मल्टीपल सर्जरीज हो रहे थे हॉस्पिटल में। शी कुडंट इवन स्पीक हर पेन। समझ रहे हैं कि वो बोल नहीं पा रही, और आपको मालूम है इस केस का फेट क्या है? ही विल गेट अवे, बिकॉज शी कांट स्पीक, शी कांट गिव स्टेटमेंट,
अब सिर्फ वो आंखों से पहचान के वो स्पेशल एजुकेटर ला भी देंगे, वो बोल भी देगी कि हाँ इसने किया ये वो, बट क्योंकि बिकॉज शी इज डेफ एंड म्यूट गर्ल, जस्टिस इज वेरी डिफिकल्ट। How do you आपको मालूम है उसकी पूरे शरीर पे बाइट्स थे, मतलब ऐसे ऐसे बाइट किया हुआ था उसको पूरा, और सिगरेट्स लगा रखी थी जगह जगह। How old is she? 8 year old, And this is Delhi. दिस इज गाजियाबाद। Yes, Eba. where does your work start? I want to understand. कब आपका काम शुरू होता है? Pari Foundation, where does it come in the picture? We come into the picture from very starting where the FIR is not being launched, because कहने की बात है कि अपने आप सब हो रहा है, ऐसा नहीं है। इवन बहुत ब्रूटल रेप भी हो गया हो, बहुत ब्रूटल हत्या भी कर दी गई हो, तो FIR अपने आप नहीं हो जाती है। इट इज़ अ प्रोसेस, यू नीड जुगाड़, यू नीड प्रेशर। आपने अभी बिहार की बच्ची का सुना होगा कि किस तरह से उसको इलाज नहीं मिल रहा था और वो एम्बुलेंस में ही उसकी डेथ हो गई, मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरनगर। तो वहाँ पर आप देखिए, हमारा ऐसा नहीं है कि वी हैव दैट स्पेशल टाइम टू अलाउ आवर सेल्व्स टू काइंड ऑफ रीच। हमें जहाँ पर विक्टिम्स से कनेक्ट हो जाते हैं, जिस भी लेवल पे हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारी टीम है हर जगह वॉलंटियर्स की, एंड देन दे ट्राई टू असिस्ट वेयर एवर इट इज़ नीडेड। जहाँ पर भी जैसे FIR नहीं हो रही है या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर रिहैबिलिटेशन होनी है, बच्ची रिकवर कर रही है, मेडिकल एक्सपेंस नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, आगे बढ़ना है, स्किल चाहिए, जॉब चाहिए, ये सब we try to help. This is what Pari Foundation Yes. does. Moving forward, can you walk us through the Nirbhaya case a little bit? Your work and where you came into the picture. आप कैसे involved हुए? निर्भया 2012 में हुआ था, और 2012 में मैं ऑलरेडी महिलाओं के साथ काफ़ी मेरा काम चल रहा था, बट जब ये केस हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रूटैलिटी, और मुझे नहीं, हम सबको लगा, आई थिंक हाफ द कंट्री वाज ऑन वर्चुअल प्रोटेस्ट मोड। और जब जंतर मंतर पे लोगों ने जाना शुरू किया, मैं भी वहीं पर जाना शुरू हुई, और हम लोगों ने सोचा कि ये आखिरी केस होगा। हमें ये पता नहीं, एक फीलिंग थी कि दिस इज़ द लास्ट केस, एंड जो भी हुआ उसके बाद अब चीज़ें बदल जाएंगी। और वी कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट फॉर अ मंथ देयर, बट उसके बाद केसेस आने लगे, जो जिनके साथ हो रहा था वो लोग जंतर मंतर आने लगे। ऐसे बहुत सारे परिवारों से हमको मिलना हुआ, तो मुझे लगा इसमें तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, और चीज़ें बिकॉज रूल्स चेंज हुए, लॉज चेंज हुए, तो हमें लगा धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी, बट लेट्स डू सम वर्क हियर। छोटे छोटे बच्चों के केसेस आने लगे मुझे वहाँ पर, जंतर मंतर पे ही वर्चुअली ऑफिस हो गया हमारा। सो वी स्टार्टेड अटेंडिंग टू दोज केसेस, और आप मानेंगे नहीं, 2012 से अभी 2025 में हम बैठे हैं, 13 साल में देयर इज़ नो डेथ ऑफ केसेस, कोई चीज़ें बदली नहीं, और इट बिकेम आवर मिशन, और तब से नो लुकिंग बैक। मुझे लगता है दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ माय वर्क व्हिच इज वर्किंग अगेंस्ट रेप्स। और मुझे लगता है कि अभी तो 13 साल यूं निकल गए, पता भी नहीं चला, एंड बट वी नीड टू वर्क अ लॉट। और चीज़ें जो सोची थी बदलेंगी, वो अभी तक नहीं बदली, और रादर खराब हो गई हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि निर्भया केस को 9 साल लगे सॉल्व होने में? 9 साल बाद जस्टिस आया, Yeah. तो 9 साल जब ओपन एंड शट केस था, ये वो वाला केस भी नहीं था कि पुलिस को बहुत दिमाग लगाना है, उन्होंने विद इन वीक पकड़ लिया क्रिमिनल्स को, 3-4 डेज में ही। Yeah. तो उसके बाद क्या बचा? वाई डू दिस Conviction. कन्विक्शन होने में इतना समय क्यों लगा? जब लोअर कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने फांसी दे दी, हम 6 साल अटक क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में? वाई देयर वाज नो नंबर? और ये निर्भया केस है, वो हाईलाइटेड केस है जिसमें 6 साल धक्के खाने पड़े हम सुप्रीम कोर्ट में। लिटरली मैं भी जाती थी हियरिंग्स में, तो ये वो केस था जो सबसे हाईलाइटेड केस ऑफ द कंट्री था। आप सोचिए नॉर्मल केसेस का क्या होता है, जो सालों साल लटक जाते हैं। इसमें हमने पता है आपको कितनी अपील लगाई, निर्भया की माँ ने कम से कम 50 अपील लगाई, अर्ली हियरिंग की, जल्दी केस खत्म हो, जल्दी फांसी हो। उसके बाद बावजूद ये हाल था कि 50 तरह की लॉयर्स बदलने के बाद, 50 तरह की अपील करने के बाद, 100 जगह धक्के खाने के बाद उनको न्याय मिला। ऐसा कोई न्याय होता है जो आपको ऐसे भीख मांग मांग के देना होता है? बट क्या पेरेंट्स डील कर पाते हैं इससे? आई जस्ट कीप थिंकिंग, इनफैक्ट मैं भी उस कॉन्टेक्स्ट में, शायद हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे उस टाइम, आई केप्ट थिंकिंग व्हाट इज द करंट मेंटल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स who've been fighting throughout years for their daughter. मतलब बहुत स्ट्रेंथ लगती होगी कोर्ट में जाने की, बहुत मतलब strength हेड्स ऑफ टू हो, क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस और अपना मनोबल नहीं छोड़ा।
बट बहुत सारे लोग हमें ही दे देते हैं केस कि मैम आप देखते रहो। बहुत सारे विक्टिम्स हैं आते ही नहीं है कोर्ट में, वो बोलते हैं आप देख रहे हो ना, आपकी संस्था देख रही है, आप बता देना हमारे केस में क्या हुआ। 80 to 90% लोग वहीं ड्रॉप आउट कर जाते हैं, इसीलिए केस खराब भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपने केस में इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। अब हमारी संस्था तो कितना माइन्यूट 1% को भी नहीं केटर कर पा रही है ना, द केसेस आर ह्यूज ऑल ओवर द कंट्री, तो वो खुद ही जाना छोड़ देते हैं कोर्ट में। अब एक बताओ, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वकील है सरकारी, वो आपके लिए क्यों लड़ेगा? वो यू आर वेरी राइट कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी सेन स्ट्रेंथ एंड लगती है बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ एंड आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी लगती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लगती है। आपको हर बार कोर्ट जाना है उठ के, और कई बार तो 99% तो आप पहुंचते हो तो आपको पता चलता है जज ही नहीं आया, छुट्टी पर है। बिकॉज आई एम श्योर कि आप इतने केसेस के थ्रू जाती होंगी, you are bound to get drained by the end of the day. I do get trained. I would not deny कि मैं बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रही हूँ या मैं बहुत स्ट्रांग हूँ या बहुत अच्छा है और आई एम ओके टू फाइट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी ड्रेनिंग, इट्स वेरी demotivating, frustrating, sometimes feel like giving up, but of course I don't. बट बहुत सारे बार नेगेटिविटी बहुत आ जाती है और सिस्टम इटसेल्फ इज वेरी क्रूअल। तो वो सिस्टम बहुत सारा क्रूअल है और देयर इज नो एपैथी। आप बात कर रहे हो, आप में एपैथी है। पीपल हु कॉल मी फॉर पॉडकास्ट दे फील फॉर द कॉज, बट नॉट एवरीबडी हैज दैट। स्पेशली सिस्टम वाले लोग बहुत इम्यून हो जाते हैं, बहुत दे बिकम वेरी aloof to the cause. Why do you think that victims post the entire trauma are being constantly blamed by their family, their partners, and the entire society? Exactly the mindset which we discussed earlier, कि वो मानसिकता ऐसी है ना कि होने के बावजूद भी आप विक्टिम को ब्लेम करो। निर्भया को भी ब्लेम किया गया, आधी रात को बाहर क्यों थी, वो मेल फ्रेंड कौन था, उसके साथ क्या कर रही थी, बस में क्यों थी। तो बहुत सारे सवाल आप विक्टिम से ही पूछने लग जाते हो, विक्टिम को ही ब्लेम करने लग जाते हो। और मैंने बोला कि 8-7 साल की बच्ची को उसकी ग्रैंड मदर ही क्वेश्चन कर रही है, तो ये जो मानसिकता है ना, तो वो तो बदलते बदलते बदलेगी। यू कांट चेंज इट ओवरनाइट, और वो एक बहुत सारे फैक्टर्स उसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं फैक्टर्स को हमें डिकोड करना है। जैसे जैसे हम डिकोड करते जाएंगे वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि वो क्यों ब्लेम करते हैं विक्टिम को, व्हाई विक्टिम आर ऑलवेज ब्लेम्ड। इनफैक्ट आई डू लॉट ऑफ पुलिस ट्रेनिंग। अगर हम बात करते हैं पुलिस से तो वो बोलते हैं कि मैडम आपको पता नहीं है लड़कियों का क्या हाल है आज की डेट में। वो सिगरेट पी रही थी, वो लिपस्टिक लगाई हुई थी उसने रेड कलर की, और आप कह रहे हो उसके साथ रेप हो गया। मतलब दिस इज हाउ दे जस्टिफाई कि अगर वो हाथ में सिगरेट है और अगर उसने पर्टिकुलर कलर की लिपस्टिक लगाई है तो उसका रेप होना चाहिए था। इट वाज ओके, इट वाज ओके। वो मतलब दैट्स देयर मेंटालिटी। और ये लोग पुलिस में भर्ती हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग करती हूँ, तो मैं कई बार तो सोचती हूँ कि मतलब आई एम वेस्टिंग माई टाइम, बट आई थिंक चलो एक का भी अगर माइंड चेंज होता है हमारी ट्रेनिंग से तो लेट्स डू इट। तो वो जो पर्टिकुलर, और आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन क्वेश्चनिंग में दिस, आई एम नॉट सेइंग इवन अ मेल कॉप टोल्ड मी दिस, है ना। तो ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसको सब मिलके ही लड़ पाएंगे, and it is going to take a decade at least, but we should start somewhere. Absolutely. I'll just take a few more minutes from you. I just want to understand something on a very personal. Do you think that the accused and the victim both should be sent to therapy instantly after the incident happened? मतलब क्या दोनों को अलग अलग रीजंस की वजह से थेरेपी पे भेजा जाना चाहिए? द अक्यूज शुड बी टॉट where they went wrong. एक rehabilitation की ज़रूरत है accused को भी, so that before they go out in the society they don't commit that crime again. And the victim उसको थेरेपी इसलिए मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा सोसाइटी में अपना सर उठा के चल सके, बैठ सके। I wish you were talking about the ideal situation, और ये सारी बातें पेपर पे तो आई थी कि होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली काउंसलिंग और थेरेपी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ऑन पेपर एग्जिस्ट कर रही है, एग्जीक्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। और हम लोग भी हायर करते हैं काउंसलर्स को, थेरेपिस्ट को विक्टिम के लिए, क्योंकि एक्यूज्ड के पास, क्रिमिनल के पास मेरा एक्सेस नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकती। और अभी तक उस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई है, पर उनको वापस सोसाइटी में आने में टाइम लगता है, क्योंकि जो सज़ा है मिनिमम 20 साल की है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और 20 साल बिफोर ही इज़ रिलीज डेफिनेटली थेरेपी और उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसकी डिकोडिंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि उसने ऐसा क्यों किया,
उसकी मानसिकता क्या थी, ये सब होने की ज़रूरत है। बहुत आइडियल सिचुएशन की बात करें, कोई किसी को पड़ी नहीं है। और रही बात विक्टिम सपोर्ट की, विक्टिम को ही नहीं काउंसलिंग दे रहे हैं ये लोग, सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो एक्यूज तो अभी जेल में ही रहेगा। अगर उसने कर दिया है, अगर वो क्रिमिनल है, तो ही विल बी इन जेल फॉर एवर। तो और माइनर्स जो हैं, जो माइनर्स कर रहे हैं ऐसा, वो रिलीज हो जाते हैं। उनकी डेफिनेटली काउंसलिंग और थेरेपी होनी चाहिए, बट वो हो नहीं रही है। बट ये बहुत आइडियल सिचुएशन है। Absolutely. Before ending the interview, I think we've had a fruitful conversation. I think this interview will raise a lot of Awareness. wherever this goes out. I think people of all ages, men, women, children, will watch this, and I think they'll come across a very new perspective about what you do and why it's very important to learn the difference between uh, respecting women, and just uh, just saying that we do respect women. See, definitely respecting women, maintaining her dignity, not objectifying her, and treating her as equal, treating her as human. I think these are the 4 statements I would like to say. और एक pledge की तरह इसको लिया जाए कि we are together in it. Like, we are together on this planet, and we should coexist together and with respectful to each other, being respectful. I think this is the crux, and और अगर हम यही बात अपने बच्चों में reinstill करने लगे, तो I think that will change the whole game forever. Narration also on the entire scenario. Ma'am, just before I let you go, there's one thing I really want. ये आपका कैमरा है. Please, one message to the entire country from you, so that we can save a lot more lives and make the lives easier for the victims and the women of the country. बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि we need to work towards rape free India as a mission, and that's exactly not my mission, because it is not my personal agenda, personal mission. Everybody should work together. How we should make India rape free? We all need to collectively come together, raise our voice properly. That's the crux. And tell our daughters to report, to speak about their violence, in case they go through any. And बस यही दो बातों का ख्याल रखेंगे। और आसपास की सोसाइटी में अगर ऐसा हो रहा है, so intervene, help them. Do not keep shut, because it is not neighbor's daughter or neighbor's child. It can be your child, your daughter also. So let's make a society which is violence free, especially towards women and children, and overall also, and collectively work towards it. Thank you so much for your time, ma'am. रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम, अपनी फैमिली को लेकर। बहुत सारा वक्त हमारा निकल जाता है हमारे पूरे दिन को बिताने के लिए। उसी बीच योगिता बेहाना जैसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो एक्चुअली एक इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रेप विक्टिम के लीगल आउटकम को इन्फ्लुएंस करना आसान बात नहीं है। कन्विक्शन रेट हम सबको ही पता है, और जिस तरह का काम ये कर रही हैं, आई थिंक द एंटायर कंट्री इज प्राउड ऑफ यू। आई थिंक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये काम कभी ना रोकें, एंड इफ पॉसिबल let's connect to more people, let's connect to more and more agencies, and let's help you to work better for whatever you're doing right now. Thank you so much. Thanks a lot. And we should collectively do it. At the end, I would really like to tell you that the entire country is very proud of you. Ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you for your time. Thank you. That's it at Creator Cast today with Rohan.